فاتحہ کہاں ہوتی ہے، امام حسین کی عظمت پہ خطاب کہاں ہوتا ہے؟ یہاں 90% باتیں جو ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ فرضی کربلا، فرضی کربلا، فرضی امام باڑہ، علم، شدے، نشان، تعزیہ، دلدل، ناچنا، گانا، ڈی جے، ڈھول، باجا اور تو بے پردہ گھومنا۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ۔ 2 سال تک آپ نے خلافت کی باغڈور سنبھالی اور بالکل حسن انتظام کے ساتھ آپ نے کام کیا، مذہب اسلام کو کہیں سے کمزور نہیں ہونے دیا۔ 2 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس گدی کو سنبھالا، دوسرے خلیفہ بنے آپ۔ انہوں نے 10 سال تک حکومت کی، شان سے حکومت کی۔ ان کے دور میں روم فتح ہوا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ یہ 2 مہاشکتیاں تھیں اپنے عہد اپنے زمانے کی، یہ دونوں سرنگوں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوا، پھر کوئی کسرا نہیں پیدا ہوا۔ جناب فاروق اعظم کے زمانے میں دونوں مہاشکتیاں زیر ہو گئی، اسلام کا غلبہ، دبدبہ اور غلبہ پیدا ہو گیا۔ 10 سال کے بعد فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی 12 سال تک اس خلافت کی باغڈور کو آپ نے سنبھالا۔ 12 سال میں بہت کام کیا۔ متقیوں کے امام عثمان غنی، صاحب ہجرتین عثمان غنی، مصطفیٰ جان رحمت کی 2 شہزادیاں جس کے نکاح میں ذوالنورین عثمان غنی، وہ ذوالنورین بھی ہیں، صاحب ہجرتین بھی ہیں، اور پھر سخی بھی ہیں۔ مال دولت لوگ کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے سکھ کے لیے، حضرت عثمان غنی نے مال سارا کمایا صرف دین متین کی خدمت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان کے ساتھ لفظ غنی لگ گیا ہے قیامت تک۔ جب جب عثمان بولا جائے گا لفظ غنی بولا جائے گا۔ لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ اصل میں مالداری مال و دولت کی بہتات اور فراوانی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اصل میں مالداری دل کی مالداری ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی نے اس گدی کو سنبھالا۔ 6 سال تک آپ نے انتہائی سلیقہ بندی اور حکمت کے ساتھ چند چھوٹے موٹے واقعات اور مشکلات کے باوجود آپ نے صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، حکمت کے ساتھ اسلام کو کی شکل کہیں سے بگڑنے نہیں دی، بلکہ خلافت راشدہ کی جو کڑی تھی، آخری کڑی خلیفہ 4 بن کر حضرت مولا علی نے بہت بڑی دین کی خدمت آپ نے انجام دی۔ مولا علی شہید ہو گئے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کو جاتے تھے، آس پاس کے لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی وقت دشمن نے اسی وقت کا سلیکشن کیا، جس وقت یہ فجر کے لیے گھر سے اٹھ کے آس پاس کے لوگوں کو جگاتے ہوئے جائیں گے، اس وقت ان کو میں شہید کر دوں گا۔ تو دشمن نے اسی وقت گھات لگا کے آپ پر خطرناک وار کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پی لیے۔ ان کی شہادت کے بعد 40,000 عرب نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ یہ وہ ہسٹری میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو ہسٹری ایک لمبی طویل ہسٹری ہے، بالکل شارٹ کر کے تاکہ سارا فیگر آپ کے دماغ میں آ جائے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی اسٹیٹ جو مدینے میں قائم ہو چکی تھی، آقا علیہ السلام اس کے کیل کانٹے سب درست کرنے کے بعد، چونکہ حضور کو اللہ کے وعدے کے مطابق موت کا مزہ چکھنا تھا، اور پھر اپنی قبر میں رہ کر، مومنوں کے گھروں میں رہ کر، مومنوں کے دلوں میں رہ کر، مومنوں کے کام کو دیکھنا تھا کہ میں نے جو باغ لگایا ہے، میرا غلام اس باغ کی سینچائی کیسے کرتا ہے، اس کی رکھوالی کیسے کرتا ہے۔ اب میرے غلام کریں گے اب، اور وہ میرا بادشاہ اپنی قبر انور سے ہم غلاموں کے حالات کا جائزہ لے گا۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے اور روزی دیے جاتے ہیں، وہ میرے احوال، میرے اعمال، میری ایکٹیویٹیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھیں میرا کون غلام بہادر ہے، کون بادشاہت کی لگام تھام کے عدل سے کام لیتا ہے، کون ظلم کرتا ہے، وہ سب کچھ نظارہ کر رہے۔ چونکہ سب دن بظاہر زمین پہ دنیا میں سب کو رہنا نہیں ہے، اس لیے آقا چلے گئے۔ حضور نے جس طرح سے اب باغ لگایا تھا، جیسی سینچائی کی تھی، اس کا نتیجہ دیکھا گیا کہ صدیق، عمر، عثمان، علی نے کس طریقے سے اسلام کو 1 انچ کہیں سے دبنے نہیں دیا، بلکہ سبوں نے اپنی اپنی
खिदमतों से इस्लाम की बेपनाह खिदमत की, जिससे इस्लाम का चमन आज पूरी दुनिया में हरा भरा है और मुस्कुरा रहा है। ये चारों हैं जिनकी खिदमतें इतनी हैं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह इन चारों यारों को मकाम बुलंद अता करेगा तब सारी दुनिया जान पाएगी। तो सहाबा तो 1,24,000 कमो पेश थे, मगर ये चारों यारों ने जानिसारी का, वफा का हक अदा कर दिया। इसीलिए ये चारों यार की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। मौला अली शहीद हो गए, उनका बड़ा बेटा इमाम हसन, उसने उस गद्दी को संभाला 6 महीने तक। इमाम हसन खलीफा रहे, इसलिए 5वां खलीफा राशिद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने रखे। 30 साल जो खिलाफत राशिदा है उसकी तकमील हुई, उसकी तकमील हुई 30 साल खिलाफत राशिदा, जिसके बारे में हुजूर ने कहा था वो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की का 6 साल दौरी हुकूमत लेकर वो 30 साल खिलाफत राशिदा की तकमील हुई। उसके बाद अमीर मुआविया जो बादशाह दमिश्क, जो गवर्नर दमिश्क थे, जो दमिश्क के गवर्नर थे, 20 साल बहैसियत गवर्नर, 20 साल बहैसियत हाकिम रहे। जनाब अमीर मुआविया वहां से आप आ गए कूफा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि जनाब अमीर मुआविया आए हैं, उनके साथ एक जबरदस्त फौज है। क्या मतलब? वो खिलाफत की दावेदारी लेकर के आए हैं कि खिलाफत मैं करूंगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाहिदों के सरदार इमाम हसन, फकीरों के दुर्वेशों के इमाम इमाम हसन। इमाम हसन वो कमजोर दुर्वेश नहीं थे, इख्तियारात की मौजूदगी में जो उन्होंने सुहद का मुजाहिरा किया है ये काबिलियत है। इमाम हसन के मुंह में हुजूर ने अपना लुआब दहन डाला था। इमाम हसन हुसैन दोनों भाइयों की पेशानी को चूमा था, दोनों भाइयों को अपने कांधे पे सवार किया था, दोनों भाइयों से बेपनाह उम्मीदें मुस्तफा जाने रहमत को थी। इसलिए लाड से, नाज से इमाम हसन इमाम हुसैन को मुस्तफा ने पाला था। कहा जाता है कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन मुस्तफा की बिल्कुल शबीह थे और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मुस्तफा की शबीह थी। यानी दोनों नवासों को खड़ा कर दें मुस्तफा की तस्वीर बन जाती थी। यानी एक हुस्न जमाल का एक नमूना था। इन दोनों को देखने के बाद सहाबे कराम की का कलेजा ठंडा होता था। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इन दोनों में बहादुरी और सखावत और दीन की खिदमत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। इनसे बड़ा कोई हाजी नहीं। 25 हज पैदल इमाम हसन इमाम हुसैन ने किए, पैदल। आला किस्म का घोड़ा मौजूद था, मगर इमाम हुसैन अपने पांव को खुदा की राह में गर्द आलूद करने के लिए, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जिसके पांव में धूल लग जाए, गर्द आलूद हो जाए, जहां जहां तक वह धूल जाएगी उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मस्जिद आते जाते धूल लगे, मदरसा आते जाते धूल लगे। यह जलसा जो उसी दरसगाह की एक शक्ल है। मदरसे में दीन सिखाया जाता है तो जलसागाह में भी दीन सिखाया जाता है। आज के इस फितनो फसाद के वक्त में आदमी घर में भी बैठा है तो भी गुनाह कर रहा है, घर से बाहर चाय की दुकान पे गए वहां भी गुनाह है। हर तरफ गाने बजाने का माहौल है। कोच बस में सफर करें गाना बजाना है, फ्लाइट में सफर करें वहां अधनंगी नीम बरहरा एयर होस्टेस आपकी निगाहों को गंदा करने के लिए तैयार है। हर जगह घर में है तो सुकून है, घर से बाहर निकले हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। 1 घंटा गुनाहों से सेफ आप बता दीजिए, 5 घंटे गुनाहों से महफूज गुजार के आप बता दीजिए। यह जलसा जब तो जहां 4 घंटे का जलसा, 3 घंटे का जलसा, या इस फितनो फसाद के वक्त में एक चलती फिरती खानका है यह जलसा। आज अगर 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, जबान गुनाहों से सेफ है, आंख गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से सेफ है। आप बता दें कि आज कान में गुनाहों की आवाज, आंख में गुनाहों के नजारे, जबान पे गुनाह वाली बोलियां, लेकिन जब तक इस जलसे में आप बैठे हैं 4 घंटे 2 घंटे तक, ये ऐसी खानका है जहां जबान भी गुनाहों से महफूज है, जहां आंख भी गुनाहों से महफूज है, जहां कान भी गुनाहों से महफूज है। जो कहते हैं जलसा कराने से क्या होगा, उसको पता चलेगा क़यामत के दिन, जहां एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, एक एक नेकी के लिए बंदा
तड़पे गा, न भाई भाई का होगा, न औलाद वालदैन की होगी, न वालदैन औलाद के होंगे। उस संकट की घड़ी में एक एक नेकी के लिए जब बंदा तरसेगा तो पता चलेगा कि 4 घंटा बैठकर मैंने जो सेफ जिंदगी गुजारी, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र, कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज, आंख नेक लोगों का चेहरा देख रही है, इससे बड़ी खानका इस जमाने में क्या होगी। पता चलेगा काश मेरी जिंदगी का अक्सर वक्त इसी दीनी मजलिसों में गुजरा होता तो बख्शिश का जरिया हो जाता। ये जलसा तमाशा नहीं है, ये जलसा खेल नहीं है जो आप कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा होगा। फिर कल कोई बोलेगा जब मौलाना बनने से क्या फायदा होगा, मदरसा चलाने से क्या फायदा होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या फायदा होगा, कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने से क्या फायदा होगा। यानी जबान को बेलगाम छोड़ेंगे तो इसी तरह शिर्क और कुफ्र और गुनाह कबीरा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जबान को लगाम दीजिए, अपनी फिक्र को लगाम दीजिए और ये जानिए कि अल्लाह के जिक्र की महफिल की फजीलत हदीस में आई है। हदीस में है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिक्र का मतलब कुरान सुनना, जिक्र का मतलब कुरान की तशरीह और तफसीर हदीस सुनना, जिक्र का मतलब मुस्तफा का फरमान सुनना, जिक्र का मतलब खामोश जबान से रहे और दिल दिमाग में अल्लाह का डर, अल्लाह की मार्फत के अनवार उसके दिमाग में आते रहे। इस जलसे में क्या होता है, एक बंदा कुरान सुनाता है, एक बंदा हदीस सुनाता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र सुनता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का डर खौफ दिल में डाला जाता है। ये बता दे कि कब्रिस्तान में 4 दीवारी करना जरूरी है, 4 दीवारी जरूरी नहीं है। 1 करोड़ का गुंबद मेरी कब्र पे बना दे, अगर मेरे अमाल अच्छे नहीं है तो गुंबद बाहर रहेंगे, कब्र के अंदर में कुटाई और पिटाई होती रहेगी। तो गुंबद बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि कब्र की राहत जरूरी है। कब्र जन्नत की एक क्यारी बन जाए, उसके लिए अमल करना चाहिए, न कि हम अपने मुरीदों और अपने बेटों को कहते हैं कि फला जमीन बेचकर मेरी कब्र पे गुंबदों मीनार बना देना। ये जाहिरी चीज नहीं, असल में है कब्र के अंदर का आराम। कब्र के अंदर का आराम जहां सांप न हो, बिच्छू न हो, फरिश्तों का डंडा न हो। कब्र जन्नत के गड्ढों में, जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा न बने। तो असल में ये है खिदमत, न कि बाउंड्री वाल करवा देना, न कि कब्रिस्तान में दरख्त लगवा देना, न कि कब्रिस्तान की जमीन के लिए मारे मारे फिरना। कब्रिस्तान के लिए मत फिर, कब्र के अंदर जो तेरा होगा उसके लिए फिक्र कर। कब्र में नूर होगा उसकी कब्र में जो जिक्र करेगा अल्लाह का, जो नमाज पढ़ेगा, जो रोजा रखेगा, जो हज व ज़कात फराइज़ व वाजिबात को वक्तों पे अदा करेगा, जो जिक्र इलाही करेगा। फिर बज़ाहिर गुंबद लेके बैठेगा, अंदर में कुटाई हो रही है, तब क्या करेगा? बेहतर था कि एक गुंबद न रहे, न कब्र पे एक ईंट लगी रहे, न कब्र ऊंची रहे और अंदर में जन्नत की क्यारी है। वह कब्र वही कब्र है जो काबिले रश्क है कि बज़ाहिर वीरानियत का नजारा है, अंदर में जन्नत की बहार है। इस पर इस्लाम जोर देता है, कैरेक्टर पे जोर देता है। वरना बहुत सारे फकीर, बहुत सारे नकली पीर, जाली पीर वह गुंबद बनवाते हैं कि मेरे मरने के बाद यह गुंबद बनेगा, और अमाल ऐसे हैं कि अंदर में जो कब्र है वह जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगा। यह जलसा जिक्र इलाही की एक सूरत है, यह जलसा बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को सुनने का एक जरिया है, यह जलसा बदअमली से बचने का एक प्लेटफॉर्म है, यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। मदरसे में 10 साल तक 1000 किताबें पढ़ी जाती हैं, उस 1000 किताबों का निचोड़ 1 घंटे के अंदर में जलसे में लोगों के सामने बयान किया जाता है। आप भी 1 घंटे से मेरी तकरीर सुन रहे हो, 1 सेकंड भी तुम कहीं से निकाल दे कि तुम्हारी तकरीर 1 सेकंड भी दीन से हटकर कुरान हदीस की सदाकत और सच्चाई से हटके है, 1 सेकंड आप नहीं निकाल पाएंगे। एक एक जुमला मुर्दा दिलों को जिंदा करने का एक जरिया है, एक एक जुमला हमें ख्वाब गफलत से जगाने का एक जरिया है। इसलिए जलसा को बुरा कहने वाला किस कदर निगेटिव सेंस रखता है, मदरसा को बुरा कहने वाला किस कदर निगेटिव सेंस रखता है। मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं डीएम बन गया, 5 लाख महीना कमाया, 25 करोड़ का घर बनाया, 25 करोड़ की गाड़ी पे मैं चला, 80 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद मैं तड़प तड़प के मैं मर गया, चला गया कब्रिस्तान। अब मैं उस दुनिया का मुसाफिर बन गया। ये बता दें कि 25 से 24 घंटे मुताला करके, 18 घंटे पढ़ के, 25 साल तक मेहनत करके डीएम
डीएम बन के नौकरी करके महल बना के कार बना के कितने दिन तक सुख किया? 70-80 साल, एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जिस दुनिया में गया है उस दुनिया का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल में इज्जत वहां की, असल में तकलीफ वहां की। इसलिए अपने बाल बच्चों को ये नजरिया हर हाल में उसकी गुट्टी में पिला दीजिए कि बेटा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर असल में आखिरत का आराम। तकलीफ नहीं है दुनिया में, क्या तकलीफ है? असल तकलीफ जहन्नम की तकलीफ। आज जो मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए, मेरा मुआशरा उजड़ गया, इसीलिए कि मकान की बात है, आखिरत की बात नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनने की बात है, जन्नती बनने की बात नहीं है। दुनिया भर की फिजिक्स केमिस्ट्री है मगर कुरान की बात नहीं है। इसलिए बच्चा डीएम बनने के बाद भी फेलियर है कि मरने के बाद अब वह खरबों साल की आग में जलेगा। अगर वह आखिरत के बारे में नहीं जाना, अगर उसका ईमान नहीं बच पाया, उसकी नमाज नहीं बच पाई, तो 1 साल 2 साल नहीं, यहां तो 18 घंटे मेहनत किया तो 25 साल की नौकरी मिली, लेकिन जहां गया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वह 7 खरबों साल आग में जलता रहेगा, वहां हमेशा आग में जलेगा, बदन कोयला बनेगा, फिर दूसरा बदन तैयार होगा, फिर उसको आग में तपाया जाएगा। इस हिसाब से दुनिया में सोने का घर हो या मिट्टी का घर, दोनों बराबर है। तो अब आखिरत का नजरिया कहां बताया जाता है? जलसे में सिखाया जाता है, मदरसे में बताया जाता है। एक मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ा, नमाजी बना, रोजेदार बना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हुआ, वह फूस के घर में रहा, किराए के घर में रहा, लेकिन दुनिया में भी इज्जत ये उसको मिली कि दस्तबोसी होती रही, कदमबोसी होती रही। किराए के घर में रहने के बावजूद समाज का लीडर, समाज का रहनुमा वही रहा। मरने के बाद तो जन्नत की बहारें उसके लिए है, क्योंकि वह नमाज पंजगाना 4 साल की उम्र से पढ़ रहा है। वो मरते दम तक नमाज, रोजे, हज और ज़कात अदा भी किया और दूसरों को अदा करने का पैगाम भी दे रहा है। इसलिए दुनिया में भी उसके लिए हरियाली है। तो डीएम बनने से बेहतर है वो काम करना जिससे दुनिया में इज्जत भी मिले, मरने के बाद जन्नत भी मिले। पर इस्लाम ये नहीं कहता कि तू भिखारी बन जा, तू साइंटिस्ट मत बन, तू डीएम मत बन, आईएएस ऑफिसर मत बन। इस्लाम ये कहता है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यानी इतनी मेहनत कर कि दुनिया में भी मालो दौलत की फरावानी रहे, और इतनी मेहनत इबादत में कर कि मरने के बाद जन्नत तेरा इस्तकबाल करे। इसलिए ये दुआ अल्लाह सिखाता है कि तू दुनिया में जद्दोजहद कर, स्ट्रगल कर, मेहनत कर, मुशक्कत कर, हलाल रोजी की तलाश कर, मगर दीन लुटा के नहीं, दीन बचा के, नमाज बचा के, अपनी आखिरत बचा के। ये आवा बिगड़ा हुआ है। करोड़ों घरों में कहीं भी न आखिरत का चर्चा है, न जन्नत का चर्चा है, न इमाम हुसैन की सादगी, उनके फक्र का, फाका का चर्चा है, न उनके ज़ुहद का चर्चा है। चर्चा है किसका? ढोल का चर्चा। चर्चा है किसका? मसनूई तौर पर आंसू बहाने का चर्चा। चर्चा है किसका? फर्जी इमाम बाड़े का। चर्चा है किसका? फर्जी करबला का। चर्चा है किसका? मरसिया का। यानी जो कि मरसिया एक दिन गाएगा, एक दिन ताजिया का जुलूस निकालेगा, एक दिन ढोल बजाएगा, उसे 5 वक्त मस्जिद तो नहीं जानी पड़ेगी। अगर दीन सीखेंगे, तकरीर सुनेंगे, तो अब उसको कड़ाके की सर्दी में भी मस्जिद जाना होगा, उसको जबरदस्त गर्मी में भी कपड़ा पहन के नमाज पढ़नी होगी, उसको तो साहब हल्के सूखे या रहे कुछ भी करे उसको रोजा रखना पड़ेगा, उसको तो ज़कात देना पड़ेगा। यानी ये कवानीन पर जो मुस्तफा का कानून है, जो अल्लाह का कानून है, वो कवानीन तो हमारे लिए बोझ है। ढोल बजाना आसान है, एक दिन जुलूस निकालना आसान है, एक दिन लंगर खा लेना आसान है। तो जो काम आसान है वो आसानी की तरफ लपकता है बंदा, लेकिन जो काम मुश्किल है उस मुश्किल को छोड़े हुआ है। तो मुहर्रम का गम मनाना, मुहर्रम में ढोल बजाना, मरसिया झड़नी गाना, ये सब अलग है। मगर वो कहानी इमाम हुसैन ने 22,000 तलवारों के बीच में जो सर को सजदे में रख के सजदा किया है और इहकाक हक उतारे बातिल किया है, नर्वस नहीं हुआ है, कहा मैं हाथ नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने हजारों जख्म नेज़ों के खाने के बाद जो हक बचाया है उस पर कौन चलेगा? जो हकीकत में करबला की रूह को जानेगा वो यही कहेगा जब मेरा इमाम तलवारों के हुजूम में सजदा किया है तो अब मैं मर जाऊंगा मगर नमाज नहीं छोड़ूंगा, सजदा नहीं छोड़ूंगा। हुसैन ने करबला में सजदा किया, अब मैं
اپنے محلے کی مسجد میں سجدہ کرتا رہوں. اصل میں یہ ہے روح کربلا. مگر چونکہ یہ کام تو مشکل ہے، اس لیے مشکل کام نہ کر کے آسان کام، جن لوگوں نے اس کا آغاز کیا ہے وہ آسان کام کرنا شروع کر دیا. اب ذرا غور سے سنیے، بس بالکل 10 منٹ کے اندر اندر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے. اب وہاں پہ امام حسن اگر چاہتے تو 40,000 عرب آپ کے ساتھ تھے، امیر معاویہ سے لڑ جاتے، کہتے کہ نہیں نہیں میں بادشاہ رہوں گا، میرا نانا ساری کائنات کا بادشاہ، میرا باپ رہا خلیفہ، باپ کے بعد میں بنوں گا بادشاہ، بادشاہت خلافت میرا حق ہے. 40,000 عرب کو لڑا دیتے، کئی ہزار لوگ مر جاتے، کٹ جاتے. مگر کرسی بچانے کے لیے امام حسن وہ سب کام کر لیے ہوتے. ان کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا یہ قدم اٹھا دیتا. مگر امام حسن کی جو تربیت مصطفیٰ نے کی تھی اسی دن کے لیے کیا تھا. حضور نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. حضور نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن یعنی میری بیٹی کا بیٹا حسن. محبت پیار سے لوگ ناتی کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. حضور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو گروہ میں صلح پیدا کر دے گا. امام حسن آگے بڑھے، سماج میں دو گروہ دونوں آپس میں ایٹھنے والا، ضد پہ اڑا رہنے والا، کبھی صلح پیدا نہیں ہوگی. ایک کو پہل کرنا ہوگا، ایک کو آگے بڑھنا ہوگا. امام حسن نے وہ سینہ چوڑا دکھلایا اور امیر معاویہ سے کہا میں کٹنے نہیں دوں گا، میں لوگ لاکھوں کو ذبح ہونے نہیں دوں گا. اپنے انداز سے بتایا میں مسلمانوں کو کٹنے نہیں دوں گا. آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، 3 شرطوں کے ساتھ امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. گردن کٹانا آسان ہے، کرسی کی قربانی یہ مشکل ہے. دنیا میں لوگ گردن کٹا دیتے ہیں، بس ستا نہیں چھوڑتے ہیں، کرسی نہیں چھوڑتے ہیں. مگر امام حسن وہ نواسا ہے مصطفیٰ کا جس نے گردن بھی کٹائی ہے اور کرسی کی قربانی بھی کی ہے. یہ ستا کی قربانی اتنی بڑی قربانی ہے کہ جو اہل فکر ہے وہ جانتے ہیں امام حسن نے بہت بڑا بلیدان، بہت بڑی قربانی دے دی. امیر 40,000 عرب ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے. مگر مسلمانوں میں خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے ایک زاہد اور درویش کی طرح، مستغنی و بے نیاز کی طرح امام حسن نے شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے خلافت امیر معاویہ کو دے دی. مدینہ چلے گئے. اب ایک بات قابل غور ہے یہاں، مطلب کیا ہے، جب کبھی اس طرح کی نوبت آ جائے کہ دنیا کو اختیار کریں یا آخرت کو، ایسے وقت میں امام حسین اور اہل بیت اطہار نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ دنیا کو تیاگ دینا ہے، آخرت کو بچا لینا ہے. جہاں ایمان اور کفر کی جنگ ہو، ہزار دنیا کا نقصان ہو، سارا نقصان بندہ اٹھا لے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے. میری بچی گھٹی میں گرہ باندھ کے رکھ لے. یہ دنیا کا عیش، دنیا کا آرام، دنیا کا حسن، دنیا کی دولت سب پروفیشنل اور عارضی اور وقتی ہے، آج ہے کل ختم. بس صرف جذبات پہ کنٹرول. ایمان جو لڑکی مرتد بن گئی مرنے کے بعد اب تو کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، اب تو صدا خربوں اربوں مہاسنکھوں صدا کے لیے آگ میں جل گئی. ایک آدمی بے بد عمل ہے، بے نمازی ہے، روزے دار ہے، مگر ایمان ہے، مسلمان ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے. 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 مہینہ، 1 دن، جتنا بھی عذاب جہنم ہو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن فضل فرما کے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو معاف کرے گا. جنت جانے کا ایک سہارا ہے. لیکن جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے. 50 کھرب قرآن کریم ختم کر دیں، 50 کروڑ سونا کا پہاڑ خیرات ان کی طرف سے کر دیں، ایک ذرہ کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. جو لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا اور جس کے 50 ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیا گیا. ابھی مدھیہ پردیش کی کہانی ہے نا، مسلمان کی ایک بیٹی کالج میں پڑھ رہی تھی، دوسرے غیر مسلم سے پیار ہو گیا. پیار ہونے کے بعد ان کے پاس چلی گئی، پھر اس نے 2-4 مہینہ اس کے جسم سے کو نچوڑنے اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے بعد اتنے ٹکڑے کر ڈالے کہ سارے کا گوشت قیمہ بنا بنا کے کتوں کو کھلا دیا. 1 مہینے کے بعد آج پولیس کو پتا چلا ایسا ہوا ہے. روزانہ اس طرح کے کیس آ رہے ہیں. اب کیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑے سے سینے پہ صبر کا پتھر رکھ لے.
ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को दिल देने के लिए मैं पैदा हुई हूं या मैं पैदा हुआ हूं, यही एक छोटा सा काम है दुनिया में। ठीक है, ये आशिक मिल गया, कल रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, आशिक का मुंह देख के जिंदा रह जाएगी। नहीं नहीं, दुनिया में बेशुमार गम है, ये एक मामूली सी बात है। इसलिए निगाहों की हिफाजत कर, अपने सीने पे सब्र का पत्थर रख ले। दुनिया जर्रा है, आखिरत मिसले समंदर के मानिंद है। इसलिए अपने तमाम बाल बच्चों को यह बात बता दे। इमाम हसन ने भी वही बताया और आगे मैं बताऊंगा कि इमाम हुसैन ने भी वही बताया कि ये दुनिया एक जर्रे नाचीज है, आखिरत मिसले समंदर के है। और जब दुनिया और आखिरत आपस में टकराने लगे तो दुनिया को थूक देना, आखिरत को गले लगा लेना। इमाम हसन ने कुर्सी की कुर्बानी दे दी, अब दुर्वेश बनकर मदीने में आके जिंदगी गुजारने लगे। कुछ लोगों ने कहा शेम शेम शेम, क्या कहा, शेम शेम शेम। मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं शेम का क्या मतलब है। मतलब है कि आपने शर्म वाला काम किया है, आपने मुसलमानों की गर्दन झुका दी है, आप आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए आर है। क्यों? 40,000 अरब आपकी तरफ से जान देने को तैयार थे, पर आपने बुज़दिली दिखाकर हजरत अमीर मुआविया को आपने खिलाफत दे दी। आप शेम हैं, शेम है। इमाम हसन ने नहीं बोला अरे तू हमको शेम बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं अली का बेटा हूं, शेर खुदा का शहजादा हूं, तू हमको आर बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मार दूंगा। ये तो आजकल के छछले किस्म के लोग, जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं, जो रियलिटी को जानता नहीं, जो बिल्कुल सिर्फ एक मक्खी घाव खोजने के लिए बस जरा सा तलाश करे कहां क्या कौन क्या बोला। एक 3 घंटे की तकरीर में 99% बातें जो जिंदगी संवारने की बातें हैं, जो जिंदगी में रोशनी देने वाली बातें हैं, उन सारी बातों को ताक पे रख देना। अब बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर और स्मार्ट बनते हुए बहुत बड़ा सोशल मीडिया में मुनामिक रहने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े राइटर बनकर एक जुमला की गिरफ्त कर लेना, बड़े मुहक्किक बन गए हैं, बड़े मुहक्किक बन गए हैं। एक जुमला की गिरफ्त कर लेना। आदमी तो बोलता है कभी कभी, अक्सर बातें 70%, 80%, 90% इस तरह की बातें लोग बोल के कहना चाहते हैं कि अक्सर यानी ज्यादातर बातें। फतवा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाक़यात, आला हज़रत का लिखा, अक्सर वाक़यात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। ये बताएं कि मुहर्रम के मौके पर होता क्या है, फातिहा कहाँ होती है, इमाम हुसैन की अज़मत पे खिताब कहाँ होता है। यहाँ 90% बातें जो हो रही हैं, क्या हो रही है, फर्जी करबला, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, अलम, शद्दे, निशान, ताजिया, दुलदुल, नाचना, गाना, डीजे, ढोल, बाजा और तो बेपर्दा घूमना, ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारी खुराफात जो 90%, जिसमें सिर्फ 10% अच्छी बातें हो रही हैं, 90% ये खुराफात हो रहे हैं। बंदा उस पे बोलता है और फिर बंदे का निशाना वो था, यानी वो राफिजी जो अहले बैत अतहार के नाम पे जिन्होंने खुराफात मचाया, जिन्होंने गंदी गंदी बातें की है। हजरत सकीना जवान है, उसकी बेसब्री को साबित करना, सैयदा सुगरा बीमार बच्चा तड़प रही है, ये कोई तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, मगर हाय सुगरा कह के रंग जमाना, हाय सकीना कह के रंग जमाना। कासिम की मंगनी हो रही है, सकीना की मंगनी हो रही है, सुगरा का खत आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है, यानी ये शहादत की, इस्तिकामत की, बहादुरी की, अल्लाह की राह पे सब कुछ लुटाने की कहानी को कबूतर की कहानी बना दिया है, कबूतर की कहानी बना दिया है, खत की कहानी बना दिया है, मर्सिया की कहानी बना दिया है। और साहब जज्बात में लोगों को भड़काने के लिए हजरत अली असगर के मैदान में लोगों के सामने पानी मांगने की कहानी बना दिया है। ये कहानी सब्र की कहानी, खुददारी की कहानी, गैरत की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, हक बचाने के लिए गर्दन कटाने की कहानी, यानी जुल्म के सामने सब्र की तारीख रचने की कहानी है। करबला की कहानी लोगों ने किस तरह से चाल फैला दिए जहालत के। असल में मेरा मतमह नजर, मेरा मकसद था इन राफिजियों, इन शियाओं का, जिनकी मस्जिदें वीरान हैं, जिनके मदरसे उजड़े हुए हैं, जिन्हें खानकाही निज़ाम नहीं है, मस्जिदें हैं अजान नहीं होती है, नमाज का पता नहीं, जबकि नमाज पंजगानों के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। यहाँ ना नमाज का सिस्टम, बस सिस्टम
सिस्टम मातम सारा सिस्टम मातम में, सारा सिस्टम सीना को भी में चला गया। हमने उसकी मजम्मत की है। अहले बैत की मोहब्बत में सुन्नियों ने शियाओं की रिवायतों को कबूल कर लिया, उनकी हिकायतों को कबूल कर लिया, उनकी सारी बातों को कबूल कर लिया। शायरों ने भी, खतीबों ने भी उसी की तरह रंग जमाना, उनकी कहानी बयान करना। मैंने राफिजियों की मजम्मत की है और मेरे वहलो जो सच्चाई से परे उन सिर्फ रंग जमाने के लिए उनकी बातों को ले लिया है, मैंने उसकी मजम्मत की है। उनकी कहानी 99% क्या 99% राफिजियों की कहानियां, वह सब गढ़ी हुई कहानी, जो कहानी 1300 साल पहले करबला के वाकयात के 500 साल तक कोई अता पता जिसका नहीं है, वो सारी कहानियां गढ़ गढ़ के सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलने, लोगों को रुलाने और फिर मजलिस में रंग जमाने के लिए अपनी तरफ से गढ़ गढ़ लिया गया है। उनकी मजम्मत की गई है। अहले सुन्नत व जमात के जिन उलमा ने, जिन फुक़हा ने, जिन्होंने तारीख लिखी है, उस तारीख से बहस किसको है? जो तारीख सच्ची है, इमाम हुसैन की शहादत की कहानी, अहले बैत की फजीलत की कहानी जो बुखारी शरीफ में है, जो मुस्लिम शरीफ में है, जो मिशकात शरीफ में है, उससे साथ बैर किसको है? उससे इख्तलाफ किसको है? हुजूर ने जो कह दिया है, कह दिया, पत्थर की लकीर है। इमाम आली मकाम की जिंदगी पे 3-3, 4-4 घंटे तक किताब करने वाला, उसको ये अहले बैत का बाकी कह रहा है। क्या अहले बैत का क्या मतलब है? ढोल बजाना। अहले बैत की मोहब्बत का क्या मतलब है? तू दुलदुल का ताजिया बनाना। अहले बैत से मोहब्बत का क्या मतलब है? झरनी गाना। अहले बैत का क्या मतलब है मोहब्बत का? टोपी पहन के, पगड़ी पहन के साथ जाहिलों के साथ उनके लाठी खेलना। ये अहले बैत अतार की मोहब्बत का मतलब है। मोहब्बत अहले बैत का मतलब है उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना। अब इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरो खैरुम मिनन नार, तुम जो मुझको आर दिलाता है, जान ले कि आर दुनिया का नार से बेहतर है, जहन्नम से बेहतर है। इसलिए जब भी दुनिया में लगे कि हराम कमा के करोड़ों, हराम के जरिए करोड़ों कमाया जा सकता है, तो हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर ले और हराम के करोड़ों को ठुकरा दें। यही हुसैनियत है, यही हसनियत है, यही अहले बैत अतार का फरमान है। यहाँ सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, दिन कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, यानी क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ये रंग बदलने वाला, ये हुसैन का नाम नहीं ले, इमाम हसन का नाम नहीं ले। हुसैन ने कह दिया ये हक है, तो तलवारों के हुजूम तक कहता रहा ये हक है। इमाम हसन ने कह दिया ये हक है, तो फिर कोई दुनिया उसको झुका नहीं पाई। मुनाफिक कभी हुसैन का नाम नहीं ले। हुसैन का नाम वो ले जो हक को मान लिया तो मान लिया, अब जान रहे या जाए, हक की रस्सी को छोड़ा नहीं जाएगा। यही पैगाम हसन है, यही पैगाम हुसैन है। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हसन शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब उनसे कहा गया कि यजीद की बैअत करें, यजीद आजाद ख्याल है, यजीद बादशाहत की लगाम थामने के बाद फराइज़ वाजिबात का छोड़ने वाला, और उस गद्दी पे जिस गद्दी को सिद्दीक़ अकबर ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, उमर फारूक आज़म ने, इमाम हसन ने जिसको सींचा है, संवारा है, बचा के रखा है, उस गद्दी को के तकद्दुस को पामाल करना चाहा यजीद ने। यजीद एक फिरौनी मजाज रखता था, वो चाहता था कोई मुझको टोकने वाला नहीं रहे, कोई मुझको समझाने वाला नहीं रहे, मैं जो कुछ भी करूं मुझको कोई टोका टोकी नहीं करे। यजीद बादशाह बन गया अपने बाप अमीर मुआविया के विसाल के बाद। अब इमाम हुसैन से चाहता था कि ये मुझको अपना हाथ देके सपोर्ट कर दे, मेरे सामने झुक जाए, मेरी इताअत कबूल कर ले, सबको मालूम है। मगर जो बात मैं इंडिकेट करना चाहता हूं वो बात यही है, यजीद हुसैन की गर्दन नहीं लेना चाहता था, यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था कि ये मुझको सपोर्ट कर दे, ये मेरी हिमायत कर दे। मगर इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं एक जालिम जाबिर की हिमायत में नहीं करूंगा। इमाम हुसैन कह देते कि ठीक है चलो, जो तुम आखिरत का अपना जिम्मेदार हो, तुमको जो कहा करो, मैं तुझको मानता हूं कि तू मेरा बादशाह खलीफा है, 4 लाख दिरहम हर महीने तुझको देना होगा, मदीने का गवर्नर मुझको बना दो, तुमको दमिश्क में जो धमाल मचाना है, शराब पीना है, बदकारी करनी है, जो करनी है तुम करते रहो, मदीने की
की गवर्नरी मुझको दे दो और 3 लाख रुपए महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, क्योंकि यजीद यही चाहता था कि लंबी पारी हुकूमत की खेलनी है, कोई मेरी हुकूमत को मेरे लिए खतरा न रहे। उसके लिए वो अपने दुश्मनों को साइड करना चाहता था, या तो जेल में डाल दे या दुश्मन से अपना समर्थन ले ले, फिर एक बेलगाम लाठी हाथी की तरह जो चाहे सो करता रहे। हर जालिम बादशाह का यही मजाज, यही टेंडेंसी होती है, सबसे पहले अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना, जिसको अपने लिए खतरा समझना उसको या तो जेल में डाल देना या उसको किसी बहाने कत्ल कर देना, ताकि फिर हमको टोकने वाला कोई नहीं रहे। यही मजाज यजीद का था, और वह इमाम हुसैन को सबसे बड़ा खतरा अपने लिए समझता था। ये जब तक जिंदा है, जिस दिन ये अंगड़ाई लेंगे मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। तलवार मेरे हाथ में है मगर लोगों का दिल इनके हाथ में है। ये सिद्दे पैगंबर है, ये रेहानतुर रसूल है, ये मुस्तफा के नवासे है, इसलिए ये जिस दिन अंगड़ाई लेंगे मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो कहता था हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे बस, ताकि कोई हमको टोकने वाला ना रहे। हुसैन कहते थे कभी एक आजाद ख्याल, कभी एक शरीयत की फिक्र न रखने वाले को मैं कभी इस जालिम और जाबिर को सपोर्ट नहीं करूंगा। इसी दरमियान इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ दिया, क्योंकि जानते थे यजीद की बैअत न करने का मतलब है कि किसी भी सुराख में छुप जाऊं यजीद मुझको वहां से ढूंढ निकालेगा। अब एक तरफ मदीने की गवर्नरी, मदीने का ऐश, मदीने में हाथ चुमवाना, आराम से रहना, मदीने में खाना पीना, करबला के मैदान से बच जाना, और एक तरफ है भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता चुनकर अपनी जाहिरी दुनिया लुटा देना, नाना की उम्मत को बचाना। एक तरफ दुनिया, एक तरफ आखिरत, या दोनों चीजें सामने है। एक तरफ मदीने का आराम, मदीने का ऐश, मदीने की दस्तबोसी, मदीने की कदमबोसी, और दूसरी तरफ भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, बाल बच्चों के कत्ल का रास्ता। हुसैन ने फैसला लिया दुनिया आज है कल खत्म, मुझे नाना के प्यार का बदला चुकाना है, मुझे अपने वादा वफा करना है, मुझको शरीयत बचाना है। ऐश को ठोकर मार दी, अपना आराम को कुचल दिया, और बज़ाहिर दुनिया की तबाही का रास्ता कबूल कर लिया, मगर मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए निकल पड़े भूख और प्यास की राह पे, निकल पड़े करबला की राह पे। 150 से ज्यादा खुतूत मक्का आ गए। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हालात का जायजा लेने वहां गया, देखा बेशुमार लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत उनके हाथ पे कर ली। वहां से खत लिखा, सहाबा कराम समझाते रहे मगर शहादत खींचती रही। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के खत आने के बाद कूफा रवाना हुए। जब वहां गए देखा 22,000 की फौज, और कहा ये तुम्हारा खत, कहा वो खत मेरा नहीं है, यानी बेवफाई की तारीख रच दी कूफा वालों ने। कहा बैअत लीजिए अब, और उसके बाद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहा मुझे मदीना वापस जाने दो, कहा नहीं। सरहद इस्लाम पे जाने दो, कहा नहीं। जो कहा फिर क्या करना है, कहा अब हाथ दे दीजिए यजीद को, बस सारा मसला हल हो जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा, फासिक को अपना इमाम नहीं मानूंगा, एक जालिम को अपना रहबर, अपना खलीफा नहीं तस्लीम करूंगा। कहा नहीं तो फिर मौत के लिए तैयार रहे। इमाम हुसैन ने कहा अब तेरी मर्जी में जो आए सो कर। अब यहाँ जंग किस बात की है, जंग है हाथ लेके रहूंगा, और यहाँ जंग है हाथ नहीं दूंगा। अब जीता कौन हारा कौन, बस यही है करबला की जंग। हुसैन ने कहा जालिम को हाथ नहीं दूंगा। जालिम ने कहा सारा बहादुर, सारा पहलवान, सारी तलवार चलाने वाले योद्धाओं को जमा कर दिया। 22,000 उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अमर इब्ने साद, खुली बिन यजीद, शिम्र मर्दूद, ये सारे के सारे बहादुरों को जमा किया। क्यों? ताकि हुसैन तलवार को देख के झुक जाएगा, हुसैन तीर को देखकर झुक जाएगा, दरिया फरात पे पहरा, हुसैन अपने बाल बच्चों की प्यास को देख के झुक जाएगा, हुसैन अपनी मस्तूरात का गम जब देखेगा शहादत के बाद इसका क्या होगा, ये सारा गम हुसैन को झुका देगा। करबला में सारी तकलीफ जमा हो गई। वहां परदेश में रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना, तलवारों के हुजूम में रहना, बादे शहादत मस्तूरात के साथ क्या सलूक होगा, उनका सदमा और अंदेशा होना। यानी जो जो मुसीबतें दुनिया में हो सकती हैं, सारी मुसीबतें करबला में जमा है। मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन के हौसलों को सलाम। यजीद चाहता था हुसैन की गर्दन पहले न कटे, अली अकबर कट गए ताकि हुसैन झुक जाएगा, अली असगर कटे ताकि
حسین بچے کی شہادت کو دیکھ کے جھک جائے گا. حضرت حر شہید ہوئے, حبیب بن مظاہر شہید ہوئے, برید بن حضیر شہید ہوئے, مسلم بن اوسطا شہید ہوئے, عباس علمبردار شہید ہوئے, تاکہ حسین جھک جائے گا. مگر لاشیں گرتی رہی, حسین کا حوصلہ پختہ ہوتا رہا. حسین نے بھیگیا کی زندگی کی بھیک نہیں مانگی, یہاں تک کہ ظلم کی تلوار چلی, تیروں کی بارش ہوئی. حسین 72 زخم نیزوں کے تلواروں کے کھانے کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی, خدا کی تسبیح پڑھتا ہوا جان جانے آفری کے حوالے کر دیا. یزید ہاتھ مل کے رہ گیا کہ حسین کا ہاتھ نہیں لے سکا. 22,000 فوج دکھا کر حسین کا ہاتھ نہیں لے سکا. ساری حکومت کو داؤں پہ لگا کے حسین کا ہاتھ نہیں لے سکا, اور حسین کامیاب ہو گیا کہ لاشوں اور مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اپنا ہاتھ بچانے میں کامیاب ہو گیا. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ وہ ظلم ابن زیاد کا, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حسین اپنا ہاتھ بچانے میں کامیاب ہو گئے. یزید ساری طاقت جھونک کے بھی حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا. لوگ کہتے ہیں حسین ہار گئے, یزید جیت گیا. نہیں, یا تو نظریاتی جنگ تھی, یا نظریہ یہی تھا کہ حسین کیسے نہیں جھکے گا, جھکا کے دم لیں گے. حسین نے بتا دیا کہ ایسے نہیں جھکا جاتا ہے, لاشوں کے انبار پہ بھی حق پہ ڈٹا جاتا ہے. نانا کی شریعت کو بچایا جا سکتا ہے. حسین کی شہادت نے یزید کو کمزور بنا دیا, اس کو بونا بنا دیا. ساری دنیا میں یزید پر تھو تھو ہونے لگی. حسین کٹ کے بھی اسلام کو زندگی دے گئے. اس راج سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آخر, شبیر تیرا نام مٹانے والے. آج سماج کو منافق کی نہیں, سچے حسینی کی ضرورت ہے. سماج کو یزیدی کی نہیں, آج سچے حسنی اور حسینی کی ضرورت ہے. سماج کو کھیل تماشے کی نہیں, سماج کو سچی روایت, سچی حکایت کی ضرورت ہے. اتنی بڑی کہانی کو لوگوں نے تماشا بنا دیا, اتنی بڑی روشنی سے بھرپور کہانی کو لوگوں نے ڈی جے اور بینجو اور ڈھول تماشے کی طرف نظر کر دیا. معاذ اللہ, ہزار بار معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سبوں کو حق پر مرتے دم تک ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنوں کے ہجوم میں نرفس نہیں, بلکہ باطل کو ہمیشہ سرنگوں رکھنے اور حق کو ہمیشہ غالب رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. وہ حالات ہند میں پیدا ہو گئے ہیں. یزید بن کے, جھک کے, گھگیا کے زندگی کی بھیک نہیں مانگیے گا کہ ہم کو بچنا ہے, بال بچے کو بچنا ہے, ہم آپ کو مان لیتے ہیں. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. سچا حسینی مر جائے گا, لٹ جائے گا, مگر اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. وہ وقت اگر آ جائے کہ دین لو یا دنیا لو, دنیا کو تھوک دینا, ٹھوکر مار دینا, اپنا دین بچا لینا. حق کے سامنے حق کی حمایت کرتے رہنا, باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی, یہ تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی. باطل کے سامنے سینہ سپر رہو, یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی. دینا تھا خود خدا کو شہادت کا مرتبہ, ورنہ خدا نہ کرتا حفاظت حسین کی. اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کو قبول فرمائے, ہمیں ہمیشہ حق بولنے, حق کی حمایت کرنے, حق کا ساتھ دینے, حق پر قائم رہ کر حق کی راہ میں مر جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوہ